Hello guys, today we have a very special guest with us and it's a wonderful filmmaker and wonderful couple. Yes, I'm talking about director Vivek Ranjan Agnihotri and Pallavi Joshi madam. We have seen Pallavi in so many serials and films, and Vivek ji, I think people cannot forget him because of the Tashkent Files, his previous film. So, but today we are not going to discuss about Tashkent Files. Today we are with a different files, and this is none other than Kashmir Files, the Kashmir Files. So first of all, thanks a lot sir for coming to my show, and my very first question to you is like to Vivek sir. Film completely talks about genocide, proves that this was a genocide, but people are still, there are set of people in India still who believes it was not a genocide, it was a exodus. So what's your take? Film is clear, it's a genocide. पता नहीं, मैं तो पहली बार आपसे सुन रहा हूँ कोई ऐसा है जो उसको जेनोसाइड नहीं बोल रहा। अभी मैं आप कर ही रहा था, वहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूके के बॉब ब्लैकमैन, उनने भी यही बोला है कि जेनोसाइड है। सारा वर्ल्ड का मीडिया मुझे वो क्या डोइशवेल पता नहीं कैसे बोलते हैं, जर्मन नंबर 1 जो कंपनी है, कैसे बोलते हैं डोइशवेल, उन्होंने भी जेनोसाइड, जो भी मुझसे बात करता है सब जेनोसाइड वर्ड यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के भी जिन लोगों ने रिव्यू किया है हमारी फिल्म को या ट्रेलर्स को, वो भी उसको जेनोसाइड बोल रहे हैं। बच्चा आज पूरी दुनिया में जेनोसाइड बोल रहा है। द ओनली पीपल हु आर नॉट कॉलिंग इट जेनोसाइड आर द पीपल हु आर ऑन द साइड ऑफ द टेररिस्ट्स। अगर उनकी वॉइस मैटर करती है तब तो इट्स वर्थ आंसरिंग दिस क्वेश्चन, पर मुझे नहीं लगता कि टेररिस्ट लोगों की आर्ग्यूमेंट को कुछ तवज्जो देनी चाहिए। There are certain of your interviews, I'm not going to name the people. नहीं, इस ऑफिस में आप नाम So people are more focused on it was exodus. Exodus happened because of genocide. I think So it's happened because of genocide. perfect. The second question is like I've seen the film before release. It was in I was in part of that press show. So I don't have the right word. Being a critic, I've written much bigger review of this, and it was the film is more focused on Bitta Karate, and there are a lot of other separatists and other local leaders of Kashmir. They are not focused or mentioned, or like the entire film what we can see as a layman is more focused on one guy, that is Bitta Karate. So देखिए, इस तरह की जब फिल्में बनती हैं तो जैसे होलोकॉस्ट की मूवी है, तो उसमें जो विलेन है वो हिटलर को दिखाया जाता है। ओके, पर हिटलर खुद तो सड़क पे जाके कुछ नहीं कर रहा था, वो थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गया। अब जब हमने गांधी फिल्म बनाई तो गांधी के बारे में है पूरी की पूरी फिल्म, राइट। अगर भारत जब कल को अगर आज के भारत के बारे में जब बात करते हैं लोग इंडिया की, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हैं, चीफ मिनिस्टर्स का नाम थोड़ी लेते हैं, क्योंकि जो और वो बिट्टा कराटे भी नहीं है। बिट्टा कराटे कम यासीन मलिक, कम गिलानी, कम, ही इज द फेस ऑफ टेरर, सिंपल। वो जो टेररिज्म इनकॉर्पोरेटेड है उसका वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो उसी को दिखाएंगे। जब टाटा सन्स की बात होती है तो हम रतन टाटा जी की बात करते हैं ना, अंबानीज की होती है तो आप उनके वाइस प्रेसिडेंट्स को थोड़ी क्रिटिसाइज करते हैं, right. तो उस तरह से आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव डन। During that riots, actually, mass rape happened, rape cases happened, and this film do not mention much about the rape cases, and there is no single scene of rape. It is ignored, smartly ignored. I'm saying, but I think it's audience who were saying it should be also part of that film, which is ignored actually. I don't know which audience. आपने फिल्म देखी? Did you feel that you are getting raped? No, sir. But I've discussed so many people actually, because buzz is there now everybody is discussing Kashmir Files actually. So ये सब अब देखिए, इसका जवाब कैसे दें? यानी एक औरत कट रही है, उसके कपड़े फट गए, लोग समझते हैं इट्स आर्ट। वी आर नॉट हियर टू टिटिलेट पीपल टू शो रेप। But don't you think एक symbolic कुछ mention में होना चाहिए था, like रेप तो दिखा था ना जब शारदा के जब कपड़े फटे सब लोगों के सामने, तो उसके बाद तो सीधा आरी मशीन पे चली गई। आई थिंक मतलब who wants to see a चली नहीं गई। हाँ, आई थिंक सीन डायरेक्ट। You have to be careful. Your mind is wired wrongly. चली नहीं गई, वैसा लगता है कि हाँ उसके कपड़े फटे वो चल के चली गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जाके एक सलवार सूट खरीदा उसके बाद वो चाट खाने चली गई। True, very true. So anyways, so next question is like many of the local leaders of Jammu and Kashmir, they are saying it's a one-sided story.
It's a one-sided. I'm not going to name. It's everybody. Almost every local leaders are saying it's a one-sided story. It's not a two-sided story. So, what's your take on that? A story is always one-sided. Name one story which is two-sided. Name one story which you have heard which is two-sided. It's focused on Hindu. नहीं अरे आपको Genocide हिंदुओं का ही तो हिंदुओं का ही तो हुआ, क्यों नहीं बोले? आपको डर लगता है हिंदू वर्ड से? No. I'm using it. आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड में कोई ऐसी एक स्टोरी बताइए जो टू साइडेड है, जरा बताइए मुझे। नहीं, they are saying कि मुसलमान भी मारे आई गए। डोंट केयर व्हाट द इडियट्स से। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी नहीं। आप मुझे एक कहानी ऐसी आपने जो पढ़ी हो जो वन साइडेड नहीं हो, टू साइडेड हो। स्टोरीज वैसी है, बट सिंस पीपल आर रेजिंग अ क्वेश्चन तो एक Which मैं people चाहता are हूं कि raising? आंसर मिलना People चाहिए। मतलब आपने कोई रिसर्च किया, जाके कहीं पूछा किसी से? कैसे पता आपको? लोकल लीडर्स के जो मैं इंटरव्यूज देख रहा हूँ, हाँ, दे आर सेइंग इट्स वन साइडेड स्टोरी। हाँ, तो जो मैंने आपको बताया ना, जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं वो लोग इसको परेशान है हमारी साइड क्यों नहीं दिखा रहे। उनकी कोई साइड ही नहीं है, टेररिस्ट की कोई साइड नहीं होती है, कसाब की कोई साइड नहीं होती। कसाब की अभी साइड बना दो, बनाने की कोशिश भी करते हैं, गरीब लड़का था इसलिए किया। बुरहान वानी इतना बड़ा टेररिस्ट था, उसके बारे में कहते हैं अरे बेचारा टीचर का बेटा था। फिर कभी अदर साइड दिखा देंगे, टैक्सी वाला मिला था, वो ये कह रहा था। ये झूठ मूठ की कहानियाँ जो हैं, तो कम से कम मुझसे तो मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं ऐसी झूठियाँ कहानी कहूँगा। मैं थोड़ी टेररिज्म के साइड में हूँ। तो टेररिस्ट लोग जो हैं वो क्यों नहीं दिखाते? 32 साल से जिन लोगों ने झूठ को छुपाया, झूठ बोला है, सच को छुपाया, 32 साल से लोग बेचारे दर दर घूम रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनकी कहानी तो किसी ने सुनाई नहीं। तो उनसे क्यों नहीं पूछते वेयर इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? और ये बहुत ही, अब दिस इज द एंड, आई मीन ये बहुत ही मूर्खता वाला सवाल है। दिस इज वेरी इनह्यूमन, बहुत ही इनकम्पैशनेट सवाल है। ये सही सवाल नहीं है, गलत सवाल है। आपको भी तो अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए। कल को कोई बेवकूफ़ आदमी बेवकूफ़ी का सवाल पूछे, इसका मतलब ये थोड़ी है यू विल डायरेक्ट इट एट मी। टू ऑफ माई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके वेलविशर्स के हैं, दैट इज़ नॉट ऑफ माइंड। वन इज़ माई एल्डर ब्रदर गुलाब मिश्रा, ही हैज़ सीन इन लखनऊ दिस फिल्म कश्मीर फाइल्स। उन्होंने पूछा है कि ये फिल्म में कुछ सीन्स आपने कट किए हैं जो शायद नहीं करना चाहिए, तो उनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? आई डोंट नो। बहुत सारे, हाँ, वो कुछ सीन्स कटे हैं जो मनमोहन सिंह जी से मिलना, यासीन मलिक का, उनका ऐसा मानना था कि ही इज़ अ लेमैन, ही इज़ नॉट फ्रॉम बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, ही इज़ इनटू रियल एस्टेट बिजनेस एक्चुअली। उन्होंने बोला शायद जब भी आप विवेक जी से मिलिएगा ये ज़रूर पूछिएगा कि सीन नहीं काटना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फिल्म। हाँ, पर वो डिलीटेड सीन्स हम दिखाई नहीं चाहते, विल पब्लिश दैट। अब वो फिल्म तो हम कैसे फिल्म बनाई जाए, क्या किया जाए, वो तो हम समझते हैं, लेकिन कुछ सीन्स फिल्म में फोकस से अलग हट जाते थे, इसलिए तो उनको डिलीटेड सीन्स को वो पब्लिक डोमेन में जी पक्का है, थैंक्स, बिकॉज उनका दिली ख्वाहिश थी कि वो सीन्स नहीं, वो मिलेगा, अच्छा है। बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जिनको देखने के बाद लोगों की दिली ख्वाहिश डिलीटेड सीन्स देखती है। लोग तो जो सीन्स होते हैं फिल्म में उसको भी नहीं देखना चाहते हैं। तो पर चलिए, हमारी फिल्म के साथ ईश्वर का वो है कि देखेंगे, करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो किसी और का है, मेरा नहीं है, इज़ मिस्टर हरि नायर। उन्होंने बोला है, इज़ फ्रॉम केरला एक्चुअली। उन्होंने बोला केरला में एक जेनोसाइड हुआ था ऑलमोस्ट 100 साल पहले, जो नायर फैमिलीज, 4 लाख नायर फैमिलीज, 4 लाख मोफला राइट्स में। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मुझसे, बहुत पहले रिक्वेस्ट किया था कि मैं जब भी आपसे मिलूंगा ये सवाल ज़रूर करूंगा कि एक फिल्म उस पर क्यों नहीं बन सकती। 4 लाख फैमिली मतलब इट्स अ, आई थिंक अ बिग स्टोरी, और ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ है। जब उस पर फिल्म बनेगी तब फिर से हमसे पूछेंगे कि उसका अदर साइड क्यों नहीं दिखाया गया है। जस्ट उनका रिक्वेस्ट है कि विवेक जी से, उनकी रिक्वेस्ट सर आपको, और क्या पता मैं आगे क्या बनाने वाला हूँ, क्या पता क्या कहाँ से कौन सी धारा फूट पड़े, तो उनसे कहिए कि वो ऑप्टिमिस्ट है। ग्रेट। आपका एक वीडियो भी उस पर आया हुआ है, वो राइट्स के ऊपर, उन्होंने मुझे क्लिपिंग भेजी हुई थी, काफ़ी पहले का है, हाँ, उस पर है। तो शायद वहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला था कि विवेक जी इज़ थिंकिंग इन दैट लाइन ऑल्सो, तो एक रिक्वेस्ट उन्होंने किया कि बिकॉज इज़ फ्रॉम दैट फैमिली, विक्टिम की फैमिली से। धन्यवाद बोलिए और कहिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनके सजेशन। और सर हमारा एक इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो चेंज हुए, JNU का नाम और राधिका मेनन जो आप प्ले कर रही हैं मैडम। सो ये नाम चेंज करने के पीछे कुछ लीगल मतलब वो था, या बिकॉज एवरीबडी नोज़ कि ये टुकड़े टुकड़े नारे कहाँ लगे थे, क्या हुआ था दिल्ली में, एवरी लेमैन नोज़, फिर भी नेम चेंज किया गया इसमें। देखिए, फारूक मलिक बिट्टा है हमारे विलन का नाम, ऐसे नाम का तो कोई व्यक्ति है नहीं।
तो बिट्टा कराटे जो है उनका नाम फारूक धर है और दूसरा है यासीन मलिक। तो हमने जब हम लोग 3-4 कैरेक्टर्स को एक करके आपके सामने एक किरदार में प्रस्तुत करते हैं तो जाहिर बात है कि होता है, क्योंकि एक कैरेक्टर के उसमें कुछ ही शेड्स होते हैं। राइट। सिमिलरली राधिका मेनन का कैरेक्टर भी इज अ फ्यूजन ऑफ अ फ्यू डिफरेंट वुमेन, इट्स नॉट जस्ट वन वुमन। तो इसलिए राधिका मेनन उसमें नाम रखा गया है। और तीसरा नाम कौन सा कहा था आपने? जेएनयू। हाँ, JNU हमने ANU कर दिया तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है मेरे ख्याल से। और मुझे पता नहीं अगर आपने वो सिंबलिज्म उसमें पकड़ा या नहीं, पर चूँकि जो प्रोटैगनिस्ट है फिल्म का उसका नाम कृष्णा है और उसको इन्फ्लुएंस कर रही है जो उसका नाम राधिका है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सिंबलिज्म पूरी एग्जैक्टली समझ में आ रहा है अगर कि उसका नाम यदि हम कुछ और रखते तो वो फिर वो सिंबलिज्म ख़त्म हो जाता, न्यूआंस ख़त्म हो जाता उसका। कृष्णा और कन्हैयाओं को कौन लियो राधिकाएं तो करती हैं। ग्रेट सर। हमारा एक जो सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन है, मैं इसको सेंसिटिव क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे देख रहा था आंखें बंद हो जा रही थी, शायद मैं देख नहीं पा रहा था। लाइक एक तो वो जो भाषा मैडम का जो आरी से कटने वाली सीन थी, पलक बंद हो गई ऑटोमेटिक। जब हम पर्दे पे कोई सीन नहीं झेल पाते हैं तो जिन्होंने लाइव देखा है ऐसा होते हुए, तो मैं समझता हूँ एक उनकी क्या हालत होगी सर। तो आप ये अब देखिए, आपके पहले ही सवाल का जवाब इसमें छुपा है। अगर आप यही नहीं देख पा रहे हैं तो रेप और दिखा देते तो कैसे देख पाते हैं? नहीं, मैं तो सिंबॉलिक के फेवर में था कि थोड़ा जस्ट एक मेंशन में आ जाए। आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ कि ज़्यादा कुछ ठीक बट एनीवेज, ये एक सीन थी जो आरी मशीन पे वो कटने वाली सीन थी लेडी की। एंड सेकंड सीन वो जो ब्लड में चावल, हस्बैंड के ब्लड से सना हुआ चावल खिलाया जा रहा है सर। वो सीन ऐसी होती ना, पूरा अंदर से रोकड़े खड़े हो जाते हैं। लाइक वो सीन, ये दो सीन ऐसी थी जो बहुत ही पावरफुल सीन थी। और मुझे लगता है कि डिस्पाइट बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोग इतनी फिल्में देखते हैं, रिव्यू करते हैं और सबके सब पत्रकार, मैं तो प्रेस शो में था तो वहाँ आम जनता नहीं थी, सब पत्रकार ही थे वहाँ पे। बट इतने आंसू बह रहे थे, लोग आंसू पोंछते हुए निकल रहे थे। और मतलब आई डोंट नो, क्लाइमेक्स की जो सीन थी उसमें मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है, जो आरी मशीन पे कटने वाली जो सीन होती है शारदा पंडित का, उसमें 5 सेकंड्स बिफोर शी वॉज कट, लाइक वो 5 सेकंड पहले शारदा पंडित के मुंह से एक स्टेटमेंट आता, ओम नमः शिवाय आई थी, ओम नमः शिवाय का वर्ड आता है। ये एग्जैक्टली किसका आइडिया था ये स्टेटमेंट, ये डायलॉग देने का, कि जब कोई मरने वाला है, श्योर शॉट है कि 5 सेकंड 4 सेकंड उसके पास बचा है तो उसके मुंह से क्या निकलना चाहिए काइंड ऑफ, और वो ओम नमः शिवाय होगा। ये आइडिया बेसिकली, ये किसका आइडिया था? वो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, वो 5 सेकंड्स, स्क्रिप्ट 5 सेकंड्स स्क्रिप्टेड है वो। हाँ, तो स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ। तो ओम नमः शिवाय इसलिए कि जो कश्मीरी पूरी जो मानस है, जो उनका जो पूरा जो कॉन्शियसनेस है जो कश्मीरी, वो सारी शैविज्म से जुड़ी हुई है और वो लोग शिव की बहुत आराधना करते हैं, इसलिए वहाँ हर कोई ओम नमः शिवाय बहुत बोलता है। और ओम नमः शिवाय भी जो है वो पूरे इंडिया की कॉन्शियसनेस है और अब तो सारे वर्ल्ड की, ह्यूमैनिटी की कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए वो एक टेररिज्म का है, वो उसका सिंबॉलिज्म है। ग्रेट। वो एक बहुत ही पेनफुल सीन थी और वो लाइंस उस मोमेंट पे आना फॉर लास्ट 5 seconds ऑफ हर लाइफ, दैट वाज वेरी पेनफुल। माय नेक्स्ट इज many of the states have made it tax free. It's a good news for a layman actually, but still we are sitting in Mumbai, Maharashtra. We are very much hopeful कि शायद यहाँ पे भी कुछ वंडरफुल हो जाए, टैक्स फ्री हो जाए फिल्में। सो एनी आइडिया सर कि जहाँ हम जिस शहर में, जिस स्टेट में बैठ रहे हैं उसका भी चांसेस ऑफ बीइंग टैक्स फ्री? ये महाराष्ट्र की यहाँ मैं थोड़ी ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं तो आउटसाइडर। मैडम मेरी कमेंट, ये मुंबई है और यही स्टेट टैक्स फ्री नहीं है, वही तो स्टेट टैक्स फ्री नहीं है। वही तो हमें भी इसी बात का आश्चर्य है, जबकि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बाला साहब ठाकरे ने बहुत कुछ किया है। राइट। स्पेशल कोटा उनके लिए सबसे पहले बाला साहब ने ही सैंक्शन किया था, जो कि हमने फिल्म में, आपको याद होगा उस बारे में। तो हमें बड़ी उम्मीद थी उसी की वजह से कि यहाँ होगी टैक्स फ्री, पर हुई नहीं अभी तक। तो इसके आगे क्या बोल, चांसेस है कुछ, एनी क्लू लाइक? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है नहीं। हमने
बहुत पहले हमने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि यदि कोविड के 2 साल बहुत कठिन गुजरे हैं हमारे सारे लोगों पे, तो यदि ये टैक्स फ्री हो जाए तो लोगों तक सत्य पहुंचना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टेट्स ने उस पर इमीडिएटली एक्शन लिए हैं, कुछ स्टेट्स ने नहीं लिए। तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में क्यों बात करूं, मैं राजस्थान के फिर क्यों मैं बात करूं, वहाँ तो 144 भी लगा दिया है वहाँ पर। तो मतलब एक से बढ़कर एक करें आप। डिस्पाइट ऑल दिस सर, वी कैन से इट्स अनस्टॉपेबल। मूवी एकदम अनस्टॉपेबल हो चुकी है, ब्रेक फेल हो चुका है, कितनी आगे जाएगी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। इट्स 10 days 11 days 200+ crore बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड ओवर। अनस्टॉपेबल हो चुकी है सर। ड्राइवर तो आप हैं गाड़ी के, और ब्रेक फेल हो चुका है। फिर भी आपको क्या लगता है कि कहाँ जाके रुकेगी? सर उस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, वो ड्राइवर कैसे डिसाइड कर सकता है कहाँ रुकेगी? और मैं ऐसा ड्राइवर तो नहीं उसे रोकने के लिए सामने वाले खंबे या पेड़ में ठोक दूँ। मैं तो जहाँ तक चलती जाएगी चलती जाए, उसमें कोई बात नहीं। देखिए फिल्म, देखिए मैं आपको ईमानदारी से बोलो, फिल्म कहाँ रुकेगी सवाल ये नहीं है, चर्चा कहाँ रुकेगी। मैं चाहता हूँ चर्चा तब तक ना रुके जब तक सब लोगों को न्याय और इंसाफ ना मिल जाए, और जब तक आप जो ये और वो सारे के सारे लोग जो कि टेरर को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं वेयर इज द अदर साइड, जब तक उन लोगों के मुंह ना बंद हो जाए और उनकी इतनी शर्मिंदा ना हो जाए, इतनी बेइज्जती ना हो जाए सोसाइटी में कि उसके बाद वो कभी मुंह खोलने की कोशिश ना करें, मैं चाहता हूँ तब तक ये चर्चा चलती है। देर आर सर्टेन मूवीज सर जो इनडायरेक्टली, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली टेररिज्म जस्टिफाई करती हैं। ये आपके बहुत सारे स्पीच में भी मैंने सुना हुआ है। इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं टेररिज्म को, बट बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पर अपने को एक सेंस तो आ ही जाता है कि डायरेक्टर एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है, कि ये सताए हुए लोग हैं, पीड़ित हैं, इसलिए बंदूक उठा लिए। मैंने अभी एक मेरे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा करता हूँ, कि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बच्चों पे फिल्म बनाई है, और बहुत काबिल डायरेक्टर और राइटर हैं श्री विशाल भारद्वाज जी का। उनका इंटरव्यू आज मैं देख रहा था, कई जब हैदर फिल्म आई थी तब उनने JKLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोली थी, और ये आपको बताता हूँ, उन्होंने ये बोला था कि ये मैं फोकस एक पॉइंट ऑफ व्यू पे करके फिल्म बना रहा हूँ, ये मेरा फोकस है। और इसमें उन्होंने भी यही सवाल कहा था कि इसके पहले जिन लोगों ने बनाई थी फिल्म, उनने क्यों नहीं बना दिया कश्मीरी हिंदुओं को। उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि विशाल भारद्वाज जी ने कि विनोद चोपड़ा जी ने मिशन कश्मीर बनाई, उन्होंने क्यों नहीं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया। तो इसका मतलब ये जो डिमांड है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, मतलब कश्मीरी हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की, ये वो लोग भी करते रहे जिन्होंने टेररिस्ट लोगों को जस्टिफाई करने के लिए फिल्म बनाई है। तो अब जब हमने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू बनाई है तो वही लोग पलट के कहते हैं कि भाई इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है। तो ये एक अजीब सी कॉमेडी है, मुझे ज़िंदगी की समझ में नहीं आता है, लेकिन हर किसी को हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाना चाहिए। विदाउट यूजिंग एनी ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ मार्केटिंग अ फिल्म, होर्डिंग्स, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर्स, आपने ज़्यादा कुछ किया नहीं। इट वॉज हार्डली एनीथिंग लाइक, बिना किसी ट्रेडिशनल फॉर्मेट को यूज़ किए फिल्म अनस्टॉपेबल हो गई, 200+ करोड़ हो गई, एंड द एंटायर कंट्री हैज़ एक सैलाब आ गया है। ये सैलाब आ गया बिना मार्केटिंग किए। लोग ये सैलाब पाने के लिए मार्केटिंग करते हैं, और बिना मार्केटिंग बजट निकाले, बिना इतनी पब्लिसिटी किए ये सैलाब आ गया। इसके पीछे आपको क्या एग्जैक्टली व्हाट डू यू फील पर्सनली? इसके पीछे हमारा भारत पे, भारतीय सभ्यता पे, भारतीय जनता पे कितना विश्वास है, हम उनकी कितनी इज्जत करते हैं, ये उसका नतीजा है। और ये अचानक नहीं हो गया, ये हम तो 12 साल से यही काम कर रहे हैं लगातार। एवरी सिंगल डे पल्लवी एंड आई वी हैव बीन डूइंग दैट। लोगों को पता है, लोग देखते हैं इस बात को। तो आप समझ लीजिए इस तरह से कि मार्केटिंग ना करना शायद नए स्टाइल की मार्केटिंग है। आप खुद मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हैं सर, आप तो यू नो बेटर हाउ टू मार्केट द थिंग्स। एडवर्टीजमेंट के बैकग्राउंड से भी आप हैं, एड फिल्म्स में भी। फिर भी आपने अपने उन फंडों को यूज़ नहीं किया, रादर देन गोइंग अ ट्रेडिशनल मार्केटिंग फंडा, आपने इस फिल्म को अपने तरीके से, आई डोंट नो व्हाट वाज द तरीका यूज्ड, बट ये अनस्टॉपेबल हुई और बहुत सक्सेसफुल रही। तो हमारी तो बेस्ट विशेज़ इज़ ऑलवेज देयर, बिकॉज आई पर्सनली लाइक द मूवी। एंड मैं चाहूँगा कि कुछ दर्शकों के लिए आपका कुछ मैसेज फॉर अ कश्मीर फाइल्स, आप दोनों का सेपरेटली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये फिल्म देखने के लिए। आप प्रसन्न रहें, सफल रहें, और अपने राष्ट्र को अखंड बनाने में, अपने कल्चर को ज़िंदा रखने में हर समय कोशिश करें कि आपका उसमें योगदान रहे।
बस इतना ही कह सकता हूँ, धन्यवाद। पल्लवी मैम। यहाँ महाराष्ट्र में हम जब भी हवन वगैरह जैसे करते हैं नॉर्थ में, वैसे महाराष्ट्र में सत्यनारायण की पूजा होती है और उसमें जो गुरुजी बैठते हैं वो सारा जो मंत्रोच्चार वगैरह होता है वो जो पुरुष बैठता है उससे करवाते हैं। उसके पुरुष के दाहिने ओर उनकी बीवी बैठती है और चूंकि उनको किचन में काम करना होता है, खाना बनाना होता है, प्रसाद बनाना होता है, तो वो जाती आती रहती हैं, इसलिए मंत्रोच्चार सारे पुरुष करते हैं और बीवी जो है वो ऐसे कोनी में से हाथ लगाती है और मम कहती है बीच में। मैं वैसे बैठी हूँ यहाँ आज मम कहने के लिए, बातचीत तो आप ही दोनों ने की। बहरहाल ये मूवी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सपोर्ट आप लोगों ने हमें दिया है और इसके लिए हम लोग जितना आपका धन्यवाद कहें वो कम है, लेकिन मैं सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कसलियत पे फिल्म बनी है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे हैं और बहनें जो हैं वो विस्थापित अभी भी हैं और उनको घर वापस भेजने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिल्म यही ख़त्म हो गई है, फिल्म आप देख चुके हैं, लेकिन जैसा विवेक ने पहले कहा, ये चर्चा चलनी चाहिए तब तक जब तक ये वापस अपने अपने घरों में जाके सेटल ना हो जाए और कश्मीर फिर से एक बार जैसे हमारी पूरा जैसे भारत हमारा डाइवर्सिटी के साथ भरा हुआ है, वैसे पूरे डाइवर्सिटी के साथ जब तक कश्मीर घाटी फिर से हरी भरी ना हो, थैंक यू, तब तक ये चर्चा हमें जारी रखनी है। आपके साथ रह के मेरी उर्दू भी हो गई है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स बोथ ऑफ यू। थैंक यू।